So yesterday we have studied about the solid solute, the solubility of a solid solute into a liquid solvent. Yes or no? Now, in the ending of the session, we were discussing about the Lee-Sattler principle, in which we have discussed that the reaction will move in the forward direction or it will go in the backward direction. Right? Now, what was the reaction that we discussed yesterday about the forward direction and the backward direction? The reaction was N2 plus 3H2, reversible reaction, formation of 2NH3 takes place. Now, in this reaction, there are two directions. The reaction will go according to Lee-Sattler's principle. The first one is forward direction and the other one is backward direction. Now, what are the products that are obtained during the particular chemical reaction? In this reaction, what happens? The number of moles, 1, 3. How many? 4. What about this? 2. अगर आपको पता हो तो मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि Lee-Sattler principle किसके अकॉर्डिंग चलता है? कि what happens with the number of moles? They are decreasing or they are increasing? If the number of moles are decreasing, means जैसे इसमें क्या number of moles decrease हो रहे हैं 4 to 2. It means number of moles are decreasing. If the number of moles are decreasing, it means the reaction will go in the forward direction. ये Lee-Sattler principle था कि अगर number of moles decrease होते हैं तो reaction will move in the forward direction. ठीक है? It means productivity increases. Productivity of what? Ammonia. Productivity of ammonia increases in the forward direction. Now what happens in the backward direction? The reaction will move in the backward direction if and only if the reaction, the number of moles decreases in the backward direction. But right now it is not there. And about the exothermic and the endothermic reactions, exothermic reaction क्या थी? कल हमने डिस्कस किया था कि if exothermic means what? The energy is released. And if the energy is releasing, it means the solubility must decrease. अगर energy release हो रही है, it means some energy is releasing out from the container of the solution. It means the solubility must decrease. What happens if the energy is absorbed by a chemical reaction? If a chemical reaction absorbs some kind of energy, it means that the molecules which are there in the container, whatever the molecules which are there in the container, these molecules absorb some kind of energy. It means the kinetic energy. It means the kinetic energy of the molecules. Which energy? Kinetic energy of the molecules increases. अगर वो increase होगी तो solubility क्या होगी? अगर kinetic energy increase होगी किसकी? Solid particles की, means वो बहुत ज़्यादा rotate करेंगे और बहुत ज़्यादा rotate करेंगे तो उनकी solubility क्या हो जाएगी? Increase हो जाएगी. तो अगर energy absorb होती है तो solubility solid solute की, मैं फिर बोल रहा हूँ, we have discussed two phenomena here. The one in which gas is the solute and the other one in which solid is the solute. जब gas solute होता है तो temperature increase करने से solubility decrease होती है. समझ आ रही है ना बात? अगर temperature increase होता है तो gaseous solute के लिए solubility decrease होगी. आपको ऐसा लग रहा होगा सर बात क्यों बता रहे हैं? इसका भी रीजन आएगा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना? फिर आपका मुंह देखना कैसा होगा. अब जब solid solute होता है तो solid solute के लिए if the temperature is increasing, it means it must be there. What about the solubility? It may increase, it may decrease. It depends on the type of the reaction, whether the reaction is endothermic type or it is of exothermic type. किस टाइप की रिएक्शन है उस पर डिपेंड करता है. तो मैंने आपको कल एक होमवर्क भी दिया था, if you guys remember that, कि आपने हेनरीज लॉ तक limitations, including limitation and all those things, and last में जाते-जाते मैंने एक छोटी सी बात बोली थी, what is the effect of pressure on the solubility of a solid solute into liquid solvent? Now, what is the effect of pressure? As you guys know that suppose that this is a marker. If I just want to press it, what happens? Is there any change in the shape of this marker? No. It means solid substances does not affected by the pressure. It may affect by the temperature. अगर मैं इसको जल्दी आग में डाल दूँगा तो मेल्ट हो जाएगा 110%. But what about the pressure? अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, जितना मर्जी प्रेस करूँ, the shape of this particular marker does not changes. And if it changes, it get into the original state. अगर by chance ये change हो जाती है, मान लो मार्कर का कैप ले लिया मैंने, है ना? अब मार्कर की कैप को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है अंदर की ओर प्रेस होगा, बट
ये अपनी जो पोजीशन है ना वापस उसको क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट जो होता है वो सॉलिड सब्सटेंसेस पर नहीं होता है। इट मींस प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इनटू लिक्विड सॉल्वेंट। नाउ the next one that we need to study today itself, and that is vapor pressure. What are the factors which affect the vapor pressure? बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, मजा आएगा इस टॉपिक में। अच्छा है, देखिएगा वेपर प्रेशर के बारे में हमें आगे एक टॉपिक पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में कि चार टाइप की प्रॉपर्टीज होती है दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर आल्सो। आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दोस नेम्स, फोर नेम्स। The first one is elevation in boiling point, depression in freezing point, depression in vapor pressure, and osmosis. Four properties we need to study. On that basis, or these properties are totally based on whatever we have studied till today, or what we are going to study in the coming 2 lectures. Now the next one is vapor pressure. देखो वेपर प्रेशर क्या है। हमने, अगर आप लोगों को याद हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है, हम लोग बस रिवीजन करते हैं इसको। क्यों नहीं कर दिया? सही कह रहा हूं ना? देखो फिफ्थ चैप्टर था, हमने एक बात पढ़ी थी कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने ये बोला था, व्हाटएवर द प्रेशर व्हिच इज exerted on the surface of solution by vapor is called vapor pressure. जो भी प्रेशर हम अप्लाई करते हैं किससे, जो लिक्विड की वेपर है, वो वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसके सरफेस पर, किसी सॉल्यूशन की वेपर है, वो वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसकी सरफेस पर, वो प्रेशर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अच्छा, एक बात सुनने में कब आएगी, तो ढंग से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछ के देख लेना किसी से तो बता दे। 2 कंटेनर है अपने पास, दोनों के अंदर हम एक सॉल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है। इसके अंदर जो वेपर है वो कुछ ऐसे है। This is the vapor of the liquid. Now this is container A, assume, and this is the container B. And one container out of these two is sealed pack. Let's assume that we have sealed pack this container. Sealed pack container is there, and this one is open container. मैं देखो वेपर प्रेशर की अगर बात करूं तो डेफिनेशन कुछ खास नहीं है। Whatever the pressure which is exerted by the vapor on the surface of solution or the liquid is known as vapor pressure. This is not an important thing. What is the importance? What is vapor pressure in practical phenomenon? I am just saying the pressure which is exerted by the vapor. In this case also the pressure exerted by the vapor, and in this case also the pressure must be exerted by the vapor. Now what is the actual one? Out of these two, which container shows the actual vapor pressure of the liquid? One is open container and one is sealed pack. ऐसा कौन सा कंटेनर है जो एक्चुअल वेपर प्रेशर को शो करता है? You have to reply it. Anyone? Just unmute your mic and speak. A. Who gives this answer? Kavita?
किसने बोला आंसर? सुब्रा? कविता ने बोला। बोलो कविता, why is this? Why A? Why not B? So B का 1 है तो में प्रेस करने के लिए क्रॉस करके या ऊपर की ओर निकल जाएगी पेपर, है ना? गुड। नहीं और कुछ? Anyone else? आप लोग मुझे तो लैपटॉप में देख रहे हो, मेरा ध्यान उधर चला जाता है, इसलिए आप सामने देखो। हाँ, anyone else? बोलो रे, बहुत जनता है इधर, पढ़ने वाला लोगों। कॉमन शर्मा ने ज्वाइन नहीं किया क्या आज? नहीं किया लगता, पैकिंग करने बोल जाते। अच्छा किया क्या तूने? हाँ बता, दोनों में से किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, एक्चुअल होगा या नहीं होगा? नहीं सर, वो उसमें देखा। ओह देखा ही नहीं, थैंक्स अ लॉट। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो दो कंटेनर है, एक सील पैक है और एक ओपन कंटेनर है, दोनों में सेम टाइप का सॉल्यूशन है, सेम अमाउंट ऑफ वेपर, हमने सेम टेंपरेचर पे हीट किया तो सेम अमाउंट ऑफ वेपर विल बी देयर, सेम टाइप का कंटेनर है, ब्लैक मार्कर से मैंने ए बी लिखा है, दोनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल वेपर प्रेशर कहां होगा? इफ and only if the container is sealed pack। ऐसा क्यों? देखो बेटा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ से वेपर बन रही है, सब वेपर तो बाहर चली जाएगी। जब तक कि वेपर बाहर जाएगी तब तक वो कुछ न कुछ प्रेशर उस पे एक्सर्ट करेगी ना। पहली बात तो ये कि वेपर बाहर चली जाएगी। दूसरी बात, a lot of gases and a moisture will be there in the atmosphere। बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी वेपर है, मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये मॉइस्चर भी तो इसकी सरफेस पर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो हमें एक्चुअल वेपर प्रेशर कहां से मिला? मिला ही नहीं। जनरली क्या होता है, हमसे ये बोला जाता है व्हाट इज वेपर प्रेशर? Vapor pressure is defined as whatever the pressure which is exerted by the vapor of the liquid is known as vapor pressure। ठीक है, रटने के लिए अच्छा है, लेकिन होता क्या है? देखो सील्ड पैक कंटेनर यूज करना है, वर्ड एक वर्ड यूज करना पड़ेगा हमें, सील्ड पैक, क्योंकि इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेयर की वेपर है, मॉइस्चर है, बाहर के जो गैसेस हैं वो भी कुछ ना कुछ इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो ये इसमें होगा वेपर प्रेशर होगा, बट इट इज नॉट द एक्चुअल वन, ये एक्चुअल नहीं होगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ की बात करते हैं तो इसमें क्या है, व्हाटएवर द प्रेशर which is exerted on the surface of this particular liquid, this the pressure which is exerted by the vapor, तो वो क्या होगा, सिर्फ वेपर से होगा जो इसके अंदर है, बाहर का कोई इसमें लिंक नहीं है। बात समझ आ गई ना? तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? पहली बात पानी दो, म्यूट करो उसको, पानी दे दे तो प्यास लगी, 15 मिनट पड़ी नहीं है तुम। देखो तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा कि सही कंटेनर होना चाहिए और प्रेशर जो है वेपर से इस पे एक्सर्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इफेक्ट किससे होगा? पहली बात तो मेरे दिमाग में आती है टेम्परेचर। बोला कैसे? तो सर जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना उतनी वेपर बनती जाएगी, और जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर हमेशा इंक्रीज होगा। नॉट एट ऑल। व्हाई इज दिस? देखो हमने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपर अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीज होती है, डैम श्योर, नो डाउट। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट आता है। कई बार होता है हमारे फ्रेंड जो सर्किल में होते हैं हमारे, वो कुछ नहीं करते हैं, एक बार कर लिए हम टॉलरेट कर लेते हैं, दो बार कर लिए हम कर लेते हैं। कई बार तो क्लास में बैठा बच्चा ऐसे सर में थप्पड़ मारता है, एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा, हम उसको बोलते हैं मत कर रहे, मत कर रहे, वो नहीं मानता तो खींच के आगे से देते हैं, फिर मान जाता है। इसका मतलब हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया। हम किसी चीज को टॉलरेट कब तक कर सकते हैं? जब तक हम इरिटेट नहीं हो जाते उस पर्टिकुलर चीज।
तो उस टाइम पर क्या होता है, वेपर में इरिटेट हो जाती है। ये कहते हैं यार तू टेम्परेचर तो आदमी है क्या, तू बढ़ता ही जा रहा है, मतलब मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करती तूने। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, वेपर प्रेशर मस्ट इंक्रीज till the saturation point comes। जहाँ पे saturation point आ जाएगा ना, उस पॉइंट तक तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो saturation point को हमने 5th चैप्टर में किस नाम से डिफाइन किया था? The saturation point was defined by an equilibrium state which is there in a gaseous phase, or I can say vapor phase, and the liquid phase। वेपर फेज और लिक्विड फेज के अंदर जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इन इस एट दिस सैचुरेशन पॉइंट व्हाट हैपेंस, द वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग इटसेल्फ एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वन। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम जब टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो टेंपरेचर इंक्रीज होता है, वेपर इंक्रीज होती है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन आपने ये देखा होगा जो प्रेशर कुकर का ढक्कन होता है ना, उसके नीचे देखा वाटर मॉलिक्यूल्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, दे आर अटैच्ड विद द लोअर साइड ऑफ दैट, क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन को जो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट्स अटैच रहते हैं। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे है, कंडेंसेशन के थ्रू। कंडेंसेशन कब होगा, जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा तभी कंडेंसेशन होगा। पहले वेपर बनेगी, वेपर एक लिमिट तक बनेगी, उसके बाद वापस क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और वेपर जो दैट स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वन। सो दैट इज नोन एज द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द लिक्विड। नाउ तो टेंपरेचर इंक्रीज होने से अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीज होता है, डैम श्योर, बट टिल द सैचुरेशन पॉइंट आफ्टर इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग as we are increasing the temperature above saturation point or saturation temperature, ठीक है। ये तो इसकी बात है। अब एक तीसरी बात कर लेते हैं। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग में तो ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। दो टाइप के सॉल्यूट होते हैं, एक होते हैं वॉलेटाइल, एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल। आपने इन दोनों का मतलब शायद ही पता हो, वर्सेटाइल का मतलब पता होगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो ना, इसलिए वर्सेटाइल हम बोलते हैं ना, that person has a versatile personality। Now what is versatile? आपको समझ आ गया था बैठे बैठे? वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है, जो हर एक टाइप का जो बिहेवियर है वो शो करता है और उसको जैसा चाहे हम ढाल सकते हैं। वो अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा है, और पर्सनालिटी वाइज भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, पढ़ता भी अच्छा है, इंटेलिजेंट भी है, खेलता भी अच्छा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी अच्छी है। जब सब कुछ अच्छा हो तो हम उसको ऐसे बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर का है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, इसको कहीं भी कर लो, है ना, तो वो सब वर्सेटाइल। तो वॉलेटाइल और अब आप बोलोगे सर वर्सेटाइल क्या होता है, आपकी थोड़ा इंग्लिश भी इम्प्रूव करने में आसान है। अब है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। देखो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दो टाइप के सॉलिड होते हैं। छोटी सी बात करते हैं, मार्कर जो होता है, मार्कर ये वाला, आप लोगों ने कई बार ऐसे किया होगा, ऐसे मार्कर को ऐसे चला के ना उसके साथ ऐसे नाक लेके जाना, अल्कोहल स्मेल करता है। इसका मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो कौन है, अल्कोहल। और अल्कोहल क्या होता है, वेपोराइज होता है। अरे ये म्यूट करो माइक, ये घरवाले राम खाने सुनाई दे रही है मुझे। तो वॉलेटाइल क्या होता है, जैसे मान लो हम क्या बोलते हैं ना, लैब में हम जाते हैं ना, बोलते हैं कि जी क्लोरोफॉर्म की बोतल को आप ओपन नहीं छोड़ोगे, खुला नहीं छोड़ना, अल्कोहल एथाइल अल्कोहल की बोतल को खुला नहीं छोड़ना। और ये खुला नहीं छोड़ने का मतलब क्या है कि ये वेपोराइज हो जाते हैं। तो the solution or the substances which gets vaporized when they will get in contact with the air or the I can say atmosphere, जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं they will get vaporized। So the type of solute which gets vaporized when they get in contact with atmosphere,
जब वो अपने एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वेपराइज हो जाते हैं, दैट आर द volatile solute, और non volatile means they will not vaporize. For example, if I consider two containers or two container name में ग्लास लेते हैं कांच का, ग्लास वाला स्टाइलिश है, पता नहीं ग्लास है बॉयल है, मुझे खुद को नहीं पता। दो कंटेनर हैं, इन दोनों के अंदर पानी डाला हुआ बेटा, वाटर। अरे माइक म्यूट कर दो, कौन है ये? अब इसके अंदर मैंने शुगर मिक्स कर दी और इसके अंदर एज यू गाइस नो अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो कैसा है? वेपराइजेबल सॉल्यूट है, वोलेटाइल है, और शुगर कैसी है? नॉन वोलेटाइल है ना। गौर फरमाइएगा जरा, स्टिल वी आर हैविंग 3 मिनट्स, तो प्लीज गौर फरमाइएगा। मान लो, अच्छा मानना नहीं होगा, आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। हियर आल्सो इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ शुगर? ऑब्वियसली सॉलिड है तो बहुत कम होगा, लेस। व्हाट अबाउट अल्कोहल? इट इज 73.8 डिग्री सेल्सियस। यस सर। अब एक बात बताओ, नहीं सॉरी, कम क्या होगा? ज्यादा होगा, सॉलिड है ना, तो 100 से तो ज्यादा होगा लिक्विड से, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका वेपर प्रेशर 100 प्लस होगा x, और इसका क्या होगा? 100 माइनस x। x क्या है? इसका हमें पता है 73.8 डिग्री सेल्सियस, 100 माइनस। तो एक बात सोचो, अगर इन दोनों का एवरेज लेंगे, इन दोनों का एवरेज लो, ये वैल्यू आएगी x, सपोज दैट, और इन दोनों का एवरेज लो, ये वैल्यू आएगी z। हमने मान लिया कि, ढंग से सुनना, कि मैंने जब अल्कोहल मिलाया तो अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है वो वाटर से कम होगा, तो इन दोनों का एवरेज हमने वैल्यू बोला x, और यहाँ पे शुगर मिलाया तो शुगर का वेपर प्रेशर है वो ऑब्वियस सी बात है कि किससे वेपर प्रेशर नहीं रहे, बॉइलिंग पॉइंट। वो बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा? 110%, वो वाटर से ज्यादा होगा। तो इन दोनों का एवरेज लेंगे, लेट्स अस्यूम दैट द वैल्यू इज z, and in this case the value is x. Okay, now just tell me that which value is more, x or z? बोलो। Am I audible to you? आप मुझे सुन पा रहे हैं या आपको सुन आ गई है? अरे, are you guys alive? Yes, sir. Oh, thank God. Oh, nice. Okay. Thank you so much. स्क्रीन क्या होगी? Voice back हो रही है। अच्छा, वॉइस बैक हो रही है क्या? हाँ, इंटरनेट कनेक्शन सुबह से इंटरनेट हो रहा है आज। नहीं सर, सही में नहीं सुन रहा है। बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। नहीं सर, मेरे को तो सुन रहा है। चलो सुनो एक बार। बिल्कुल भी। चलो ठीक है, वापस में लड़ो मत, ये लाइव क्लास है, क्लास वैसे फिजिकल नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसा हो सकता है आज नेट में सुबह से थोड़ी दिक्कत थी, यहाँ भी मेरा नेट कनेक्ट नहीं हुआ था कुछ टाइम के लिए, तो मे भी हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो। तो अभी इतना तो बताइए, तो इतनी आवाज़ तो सुन रही होगी आपको, 10:30 हो गए। बस इतनी छोटी सी बात बता दो मेरे को, दोनों सारे मिलकर छोटी सी बताना, इधर देखो जरा, x बड़ा z, इन दोनों का एवरेज और इन दोनों का 100 और 100 प्लस का एवरेज और 100 और 100 माइनस का एवरेज, तो किसका एवरेज बड़ा होगा? 100 and 100 प्लस, मतलब z इज ग्रेटर देन x। तो देखो इसमें तो हमने क्या डाला? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें कौन सा डाला? नॉन वोलेटाइल। जब नॉन वोलेटाइल डाला तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया? एवरेज में डिक्रीमेंट हो गया, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जब इसमें डाला, नॉन वोलेटाइल डाला, तो क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन इन वेपर प्रेशर या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एक चीज हम कल और डिस्कस करेंगे। और अभी एक बार आपके पास नोट्स एंड प्लीज ट्राई टू
रीड इट। राउल्ट लॉ नहीं पढ़ना आपने, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है, और एलिवेशन, और जो एलिवेशन डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर एक टॉपिक दिया होगा, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, उसको एक बार जरूर पढ़ना अपनी नोटबुक से। कल हम इसी यहीं से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वापस। थैंक यू सो मच।